Jai Narayan student, welcome back here. I hope you all are well. Stay home, stay safe, stay healthy. I hope you all are this rule is follow SMS. Are you know that ki S means so, M means marks, S means social distance. Please this rule is follow SMS. Now myself Nidhi Lal, today we discuss for class 7 geography chapter 2 inside our earth. This lecture is part 2nd and lecture 2nd. Now start. Rock. Rock is a hard material composed of mineral and organic substance. See, this picture is very hard rock. See, and organic matter is means ki the remain. This is the fossil. Fossils means clear that ki the remain of the dead plants, animal trapped in the layers of rock are called fossil. और जो हमारे लेयर्स में आ जाते हैं जैसे कि जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सारी चीज़ों के फॉर्म से हमारा क्या रेडी होता है? ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर एक लेयर फॉर्म करता है और इसमें ये हमारी क्या रॉक बनाता है और इस तरीके से एक रॉक रेडी होता है. रॉक इज़ अ वेरी हार्ड मटेरियल and composed of minerals and organic substance. See the picture, organic substance, zinc and ferrous. See, this is the mineral also. Clear? Now next आते हैं हम लोग point में. Rocks. Rocks origin of life. The earth crust is made up of various types of rocks. Any natural masses of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. Rock can be of different color, size and texture. इसको हम इस तरीके से अलग अलग कलर्स होते हैं, साइज होता है, टेक्सचर होता है. आप फिर से इस पिक्चर्स को ध्यान से देखें तो ये रॉक है. रॉक में अलग अलग कलर होंगे, अलग अलग पिक्चर्स हैं और बहुत सारे मिनरल्स से कंपोज हो रहे हैं और इसमें मिलते हैं कंपोज और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर एक लेयर फॉर बनती है. जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि डेड प्लांट्स, एनिमल ट्रैप द लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल्स. उसी लेयर से एक रॉक रेडी होता है और रॉक इज अ हार्ड मटेरियल कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक substance. Now next आते हैं हम लोग types of rock. हमारे there are 3 major types of rock हैं. First है igneous rock, second sedimentary rock and third is metamorphic rock. तो आर यू क्लियर डैट कि रॉक्स क्या होता है? हमने अभी डिस्कस किया कि रॉक्स एक एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल मैटर दैट्स मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. A rock can be different color, size and texture. And there are 3 major types of igneous, sedimentary and metamorphic rock. Now start the igneous rock. Igneous rock. Igneous means Latin words igneous meaning is fire. Igneous का मतलब क्या है? एक तरीके से एक fire. Igneous rock are formed out of magma and lava from the interior of earth. When its molten magma comes on earth's surface, it's cooled down and become a solid. The rock thus formed are called igneous rock. It means कि are you know that कि when the molten magma जब cool होता है तो it become the solid rock and thus formed are called igneous rock. मैग्मा मोल्टन जब कूल होता है फिर एक सॉलिडिफाई में हो जाता है, फिर वो क्या फॉर्म करता है? इग्नियस रॉक. एंड they are also called primary rock. Why are you saying the primary rock? Because this is the first rock, igneous rock. It is another name of primary rock. Example, granite, basalt. There are 2 types of igneous rock. First, intrusive igneous rock and second is extrusive igneous rock. Now see extrusive and intrusive. See the igneous rock formed when molten lava comes on the earth's surface and rapidly cool down. बहुत जल्दी वो बाहर आके और एकदम रैपिडली ठंडा होता है ऑन अर्थ सरफेस पे. आर कॉल्ड इस जो बाहर आना दैट मीन्स कि आउटसाइड आना, दैट इज द एक्सट्रूसिव igneous rock. दिस वर्ड से आप समझ जाइएगा कि एक्सट्रूसिव
मतलब कोई चीज़ बाहर आ रही, आउटसाइड आ रही है, इसकी मीनिंग तो यही हुई कि जो चीज़ बाहर आना। और जो अर्थ सरफेस पे और जब आता है कोई चीज़ और बहुत रैपिडली कूल डाउन होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो सी वेरी फाइन ग्रेन्ड, आपको ये भी है कि ये बहुत फाइन ग्रेन्ड होगा क्योंकि बाहर आके बहुत जल्दी ठंडा होता है और इसका स्ट्रक्चर बहुत फाइन होता है। ठीक है, सडन कूलिंग ऑन अर्थ सरफेस। इसका एग्जाम्पल बेसाल्ट, डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। ओके, सी मैग्मा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि मैग्मा कहाँ रहता है। मैग्मा इनसाइड द अर्थ होता है। एंड लावा मतलब कि जब मैग्मा रीचेस करता है अर्थ सरफेस पे, जब बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा। ओके, नाउ इंट्रूसिव, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रूसिव। Okay, sometimes the molten magma cool down deep inside the earth's crust. जब वो अंदर ही रहकर कूल होता है और बहुत धीरे धीरे होगा, very slowly, तो solid rocks so formed are called intrusive igneous rock. और जब कोई चीज़ slowly कूल डाउन होता है तो large grains होते हैं, उसमें बड़े बड़े grains होते हैं, बड़े बड़े दानेदार बनाता है। और उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेनाइट। ओके, तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ such a rock. Grinding stone used to prepare paste, powder of species and grain and made of granite. Now again this all topics are clear this picture. See, igneous rock. Can you imagine? Lava is coming out from the volcanoes. So lava is actually firing and red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. So when this molten lava comes on the earth's surface, it's rapidly cool down and becomes a solid, and rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. और जो बाहर आ गया वो आपका एक्सट्रूसिव हो गया। और देखिए नेक्स्ट, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। क्यों वो फाइन हो गया, क्योंकि वो धीरे धीरे, आपने अभी पढ़ा कि वो जब कोई चीज़ बाहर आके तुरंत ठंडा हो रहा है, उसके जो है फाइन ग्रेन्ड होंगे। क्लियर, वेरी फाइन स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, एंड the Deccan Plateau is made up of basalt rock. Sometimes the molten magma cool down deep inside. देखिए, see in the inside, पिक्चर में दिख रहा है आपको, inside the earth crust. तो solid rocks so formed are called intrusive igneous. जो चीज़ बाहर नहीं आ पाई और अंदर ही हुई और वो धीरे धीरे, तो since they cool down slowly they form large grains. और ये क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े grains बनाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ such a rock. तो grinding stone used to prepare a paste, powder of spices, and grains are made up of granite. Clear? तो extrusive igneous rock example granite and extrusive igneous rock example is basalt. I think कि ये clear हो गया टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फिर दिस पिक्चर सेम वही फॉर्म, extrusive igneous rock are cooled quickly. As a result, they are fine grained, have a lack of crystal growth. Clear? And magma chamber, see, intrusive igneous rock are formed and from magma that cool slowly, and as a result these rocks are coarse grained. Now sedimentary rocks. See, what is the sedimentary? This word is sedimentum. So Latin word is the sedimentum. Sedimentum means settle down, किसी चीज़ का settle होना, एक लेयर में आना। आप घर पे भी कोई पानी, थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसमें कोई चीज़ आपने, मान लीजिए सॉयल डालते गए, कुछ और सॉयल डाला, कुछ आपने एल्यूवियल सॉयल डाला, कुछ ब्लैक सॉयल डाला, कुछ लेटराइट डाला, रेड, तो कितना मिक्स कलर से लेयर्स रेडी होंगी और वो कहीं ना कहीं एक सेटल डाउन होती चली जाएंगी। तो सेम सेडिमेंट्री रॉक भी इसी तरह फॉर्म होती है। नाउ सी, Rocks, igneous, sedimentary and metamorphic, roll down, crack and hit each other and are broken down
into small fragments. These smaller particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, वाटर एटसेट्रा. और ये कहाँ बहा के ले जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, किसके द्वारा डिपॉजिट होती हैं, विंड एंड वाटर के द्वारा. एंड दीज लूज सेडिमेंट्स, और ये लूज होते होते सेडिमेंट कंप्रेस्ड होता है और हार्डेंड रहता है टू form a layer of rock, and these type of rock are called sedimentary rock. और ये कौन से rock ready करती है, sedimentary rock. And these rock may also contain fossils of means like plants, animal and other microorganism that once lived on them. इसको हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर कि what is the fossil. फॉसिल मीन्स होता है कि द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जो मर जाते हैं प्लांट्स एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक. उस रॉक में जो एक लेयर बना लेते हैं और कॉल्ड फॉसिल. तो उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, प्लांट्स एनिमल एंड अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस समय रहते हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ें उस फॉर्म में लेयर फॉर्म्ड कर देती हैं. दैट इज द फॉसिल. एग्जाम्पल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि इस फिगर में बहुत अच्छे से फिर से इस प्रोसेस को समझाया, सेडिमेंट्री को. रॉक्स मतलब फर्स्ट इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री. देखिए कितने प्रोसेस हो रहा है. पहले वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग होते फिर सेडिमेंट्स हो रहा है. सेडिमेंट क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं विंड वाटर के थ्रू, फिर वो डिपोजिशन कर रहा है, फिर कंपैक्शन हो रहा है, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन हो रहा है, और उस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स रेडी हो रही है. सी दैट पिक्चर, सेडिमेंट्री रॉक्स. देखिए कितने लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं फॉसिल्स के थ्रू भी, जैसे जो डेड प्लांट्स है, एनिमल है, ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक, और ये लेयर बना रही हैं और कल फॉसिल. तो ड्यू टू द सक्सेसिव डिपोजिशन दे हैव अ लेयर्ड, आप देख रहे हैं एक लेयर्ड बनी हुई है, देखिए मैंने रेड से मार्क किया हुआ है. और स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर. और इस तरीके से हमारी क्या बनती है, इट इज़ मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. तो आपने देखा कि रॉक्स कैसे रोल डाउन कर रहा है, किस तरीके से क्रैक हो रहा है, हिट हो रहा है, फिर ईच अदर आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, एंड these smaller particles are called sediments, and these sediments are transported and deposited by wind and water. फिर these sediments are compressed and hardened to form layers of rock, and these type of rock are called sedimentary rock. Or for example like that the sandstone made from grains of sand. इस तरीके से हमारी sedimentary rock ready होती है. तो these rocks may also made from grains of sand, तो आपको क्लियर है. तो these are rocks may also contain fossils, अभी हमने डिस्कस किया, like plants, animal and other microorganism that once lived on them. और इस तरीके से इस लेयर के फॉर्म में वो पाए जाते हैं और ये लेयर बनाते चले जाते हैं. तो दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक. नाउ नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक. What is the metamorphic rock? Now Greek word is the metamorphosis, meaning change of form. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure. It means कि igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under the great heat and pressure. और इतने हीट और प्रेशर से क्या फॉर्म कर देते हैं, तो दो रॉक मिलके क्या बना दे रही हैं, कैन चेंज फॉर्म. क्या चेंज कर रही हैं, मेटामॉर्फिक रॉक. आपने देखा कि पहले इग्नियस रॉक क्या वो अपना काम कर रही है, फिर वो चेंज कर दे रही है सेडिमेंट्री और इग्नियस मिलके क्या चेंज कर रही है, मेटामॉर्फिक रॉक. When metamorphic occur, rocks comes in contact with molten magma and rocks are forced down to layer levels of tectonic process. Underlying rocks are subjected to great pressure by overlaying rocks, like example marble, gneiss. For example extra भी हम ले लें, जैसे clay changes into slate and limestone into marble. Again my example, फिर से मैं पूरी एक बार definition रिवाइज करूँगी. जैसे igneous
and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. तो आपने देखा कि क्ले चेंज कर रही है स्लेट में और लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल. नाउ सी इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स, हीट एंड प्रेशर हो रहा है तो मेटामॉर्फिक रॉक. फिर ग्रेनाइट में भी इग्नियस रॉक में हीट एंड प्रेशर तो क्या बना रही है, गिनेस मेटामॉर्फिक रॉक. फिर लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का क्या फॉर्म कर रही है, मार्बल. तो मार्बल जस्ट लाइक मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ यूजफुलनेस ऑफ रॉक. रॉक किस तरीके से हमारी यूज में है. तो रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस. हाउ डू यू नो दैट कि रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स. यस, रोड्स, हाउस एंड बिल्डिंग्स. you use to stones in many game. यस, बहुत सारे गेम्स में भी स्टोन्स यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे 7 टोन्स, यस, 5 टोन जो कि हम लोग पिट्ठू एक होता है गेम 7 टोन्स में, ग्लिट होता है जिसमें 5 स्टोन्स होते हैं. क्लियर. तो नाउ तो यहाँ पर सी द पिक्चर. रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड फोर्ट किससे बना है, रेड सैंड स्टोन से. क्लियर. और द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल. क्लियर. तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी यूजफुल होता है और रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस. तो आपने आज देखा कि रॉक के भी बहुत सारे एग्जाम्पल. तो दिस टॉपिक इज क्लियर कि आज हम लोग ने रॉक्स पढ़ा, रॉक के सारे पार्ट्स 3 टाइप्स पढ़ा, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ नेक्स्ट क्लास लेक्चर 3 में हम लोग रॉक्स की साइकिल पढ़ेंगे.